بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. محبان حبیب کبریا، طالبان علوم نبوت، سیرت و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 25واں سبق ہے، جس کا عنوان ہے تصویر جعفر بن ابی طالب للجاہلیہ و تعریفہ بالاسلام. حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا جاہلیت کی منظر کشی کرنا اور اسلام کا تعارف کروانا. نجاشی کے دربار میں جب مہاجرین کو طلب کیا گیا تو سب کی نیابت کرتے ہوئے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے زمانہ جاہلیت کی جو منظر کشی کی، اس کی برائیوں اور فحاشیوں کا تذکرہ کیا اور اسلام کا جو حسین اور بہترین تعارف کروایا، اس کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. تصویر باب تفعیل کا مصدر ہے. صور یصور، تصویر نقشہ بنانا، تصویر کشی کرنا، منظر کشی کرنا، ایک خاکہ پیش کرنا. جاہلیہ بارہا گزرا ہے، زمانہ جاہلیت، اسلام سے پہلے کا زمانہ، عبوری عادتیں، خصلتیں جو اسلام کے منافی ہوں، اسلام کی متضاد ہوں. تعریف یہ بھی باب تفعیل سے ہے. عرف یعرف، تعریف، تعارف کروانا، پہچان کرانا. وقام جعفر بن ابی طالب وهو ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال له، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اٹھے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے. تو آپ نے نجاشی سے کہا، حضرت علی کے بھائی ہیں، ابو طالب کے بیٹے، اس لیے ابن عم، چچا زاد بھائی. ایھا الملک، بادشاہ سلامت، اے بادشاہ. کننا قوما اہل جاہلیت، ہم جاہلیت والے لوگ تھے، ایسے لوگ تھے جن میں جاہلیت کی خصلتیں تھیں، علم سے کوسوں دور تھے. تو کننا قوما اہل جاہلیہ، قومن کی صفت لائے، اہل جاہلیہ، جاہلیت والے لوگ تھے. نعبد الاصنام ونأکل المیتۃ، بتوں کی پوجا کرتے اور مردار کھاتے. میتہ مردار، اس کی جمع میتات، جو اپنی موت مر گیا ہو، جسے ذبح کر کے ناپاک خون نہ نکالا گیا ہو، ایسے جانور کو میتہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. ونأتی الفواحش، اور ہم بے حیائیوں کا ارتکاب کرتے. ات الفاحشۃ، بے حیائی کا ارتکاب کرنا. ونقطع الارحام ونسیء الجوار، اور ہم رشتہ داریوں کو کاٹتے اور پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے. رحم کی جمع ارحام، رشتہ داری، ایک تو صلہ رحمی کرنا اور ایک رشتہ داریوں سے تعلق کو کاٹنا. اساء یسیء اساءۃ، بدسلوکی کرنا، برا کرنا. تو نسیء الجوار، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے. وَيَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا الضَّعِيفَ، اور ہم میں سے توانا کمزور کو کھا جاتا، توانا کمزور کو دباتا. تو کھانے کا مطلب دبانا، اس کو مزید کمزور بنانا، اس پر ظلم و ستم کرنا. فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ، ہم اسی حالت پر تھے، ہماری یہی حالت تھی. حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا، یہاں تک کہ اللہ نے ہماری طرف ہمیں میں سے ایک رسول بھیجا.
इलैना मिन्ना, हम ही में से हमारी तरफ एक रसूल भेजा। नारिफु नसबहु व सिद्क़हु व अमानतहु व आफ़ाफ़हु, हम उसके नसब, सच्चाई, अमानतदारी और पाकदामनी, पाकबाजी को जानते हैं। नसब अंसाब 12 गुजरा। आफ़ाफ़ अफ़ इफ़ इफ़्फ़तन व आफ़ाफ़न, पाकबाज होना, पाक दामन होना, हर एतबार से बाअखलाक होना। तो ये मज़दर है आफ़ाफ़। दुआ में भी है अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल आफ़ाफ़, पाक दामनी। फ़दआना इलल्लाहि लिनुवहिदहु व नअबुदहु, तो उसने हमें अल्लाह की तरफ दावत दी कि हम अल्लाह को एक माने और उसी की इबादत करें। लाम कई है, लिनुवहिदहु, वहद युवहिदु तौहीद, खुदाए वाहिद का कायल होना, खुदा को एक मानना। व नख़लअ मा कुन्ना नअबुदु नहनु व आबाउना मिन दूनिही मिनल हिजारति वल अवसान, और हम उन पत्थरों और बुतों से अलग थलग हो जाएं, दस्तबरदार हो जाएं, जिनकी हम और हमारे बाप दादा अल्लाह को छोड़कर इबादत करते थे। खला यखला व खलअन, अलग हो जाना, दस्तबरदार हो जाना, इसी से है खलान नाला, जूता वगैरह उतार देना। तो अल्लाह को छोड़कर जिन चीज़ों की हम पूजा करते थे उनसे दस्तबरदार हो जाएं, उनसे अलग थलग हो जाएं। वसन की जमा उसान, बुत। व अमरना बिसिद्क़िल हदीसी व अदाइल अमानती व सिलतिर रहीमी व हुस्निल जिवारी वल कफ़्फ़ि अनिल महारिमी व दिमा, और उन्होंने हमें सच बोलने, अमानत को अदा करने, रिश्तेदारियों को जोड़ने, पड़ोस के साथ हुस्न सुलूक करने और हराम कामों और खून रेजी से रुकने का हुक्म दिया। अमराना, हमें हुक्म दिया बिसिद्क़िल हदीस, बात की सच्चाई का, सच गोई का। सिलत रहीम बारहा आ रहा है। कफ़ अनिल महारिम, कफ़ रुक जाना, महरम की जमा महारिम है, मुहर्रमात, हराम करदा चीज़ें। दिमा, खून, खून रेजी से, किसी का खून बहाने से हमें रुकने का हुक्म दिया। व नहाना अनिल फ़वाहिशी व क़ौलिज़ ज़ूर व अक्ली मालिल यतीमी व क़ज़्फ़िल मुहसनाती, और उन्होंने हमें बेहयाइयों, झूठ बोलने, यतीम का माल खाने और पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाने से मना किया। नहा यनहा, नहियन, मना करना। फ़वाहिश, फ़ाहिशा की जमा है बेहयाई। क़ौल ज़ूर, झूठी बात। ज़ूर हर बातिल को, हर खिलाफ़े हकीकत बात को कहा जाता है। इब्न आशूर रहिमहुल्लाह ने लिखा है कि ज़ूर की सबसे बेहतरीन जो तारीफ़ की गई है वो ये है, इन्नहुल कज़िबुल मुहस्सनुल मुमव्वहु बिहैथु यश्तबिहु बिस्सिद्क़, इन्नहुल कज़िबुल मुहस्सनुल मुमव्वहु बिहैथु यश्तबिहु बिस्सिद्क़। ज़ूर ऐसे झूठ को कहा जाता है जिसे खुशनुमा बनाकर, मुलम्मा साजी करके पेश किया जाए कि वो सच्चाई के मुशाबे दिखाई दे। तो जिसको बनाया गया हो, बज़ाब्ता उसको खुशनुमा बनाकर मुलम्मा साजी करके पेश किया गया हो, तो ऐसे खिलाफ हकीकत कौल को, ऐसे बातिल कौल को ज़ूर से ताबीर किया जाता है। यतीम, ऐताम, यतामा, यतीम के माल खाने से। क़ज़फ़ यक़ज़िफ़ु, क़ज़फ़ तोहमत लगाना। मुहसनात, पाक दामन औरतें। अहसन युहसिनु, इहसान, हिफाजत करना। अहसनत फ़रजहा, उसने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की। तो मुहसनात शादीशुदा औरतों को भी कहा जाता है और हर पाक दामन औरत को मुहसनात से ताबीर किया जाता है।
वअमरना अन नअबुदल्लाह वहदहु ला नुशरिकु बिही शैआ, और उन्होंने हमें हुक्म दिया कि हम तने तनहा अल्लाह की इबादत करें, खुदाए वाहिद की इबादत करें, उसके साथ किसी चीज़ को शरीक न करें। वअमरना बिस्सलाति वज़्ज़काति वस्सियामी, और उन्होंने हमें नमाज, ज़कात और रोज़े का हुक्म दिया। फ़अद्दद अलैहि उमूर अल-इस्लामी, तो हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके सामने इस्लामी मुआमलात को, इस्लाम के सारे उमूर को गिनवाया। अद्ददत तादीद, तादाद, गिनवाना, शुमार करना। फसद्दक़नाहु व आमन्ना बिह, तो हमने उनको सच्चा जाना, हमने उनकी तस्दीक की और उन पर ईमान ले आए। वत्तबअनाहु अला मा जाअ बिही मिनल्लाह, और वो जो कुछ अल्लाह की जानिब से लेकर आए हमने उसकी पैरवी की, उसकी इत्तिबा की। फ़अबदनल्लाह वहदह, तो हम अल्लाह खुदाए वाहिद की इबादत करते हैं। फ़लम नुशरिक बिही शैअन, उसके साथ किसी चीज़ को शरीक नहीं करते। वहर्रमना मा हर्रम अलैना, और जिन चीज़ों को उन्होंने हम पर हराम किया हमने उनको हराम समझा, हम उनके इर्तिकाब से बच गए। तो हराम समझना और हर्रमा, हराम से बचना, इसके दोनों माना आते हैं। वअहललना मा अहल्ल लना, और जो उन्होंने हमारे लिए हलाल करार दिया हमने उसको हलाल समझा, उसको इस्तेमाल किया। फ़अदा अलैना कौमुना, तो हमारी कौम ने हम पर ज़्यादती की। आदा आला, ज़्यादती करना, किसी पर चढ़ाई कर देना। फ़अज़्ज़बूना वफ़तनूना अन दीनिना, तो उन्होंने हमको सज़ाएँ दी, तकलीफ़ें दी और हमें हमारे दीन से फेरने की कोशिश की, दीन के सिलसिले में आजमाइश में मुब्तला किया। फतना, फितने में डालना, आजमाइश में मुब्तला करना। लियरुद्दूना इला इबादतिल औसानी मिन इबादतिल्लाहि तआला, ताकि वो अल्लाह की इबादत से हटाकर बुतों की इबादत की तरफ फेर दें, बुतों की इबादत में लगा दें। व नस्तहिल्ल मा कुन्ना नस्तहिल्लु मिनल खबाइस, और ताकि हम उन खबीस चीज़ों को हलाल समझें जिन्हें हम हलाल समझते थे, या उन खबीस चीज़ों का इर्तिकाब करें जिनका हम पहले इर्तिकाब किया करते थे। तो हलाल समझने में दोनों माना आ गए, एक तो ये कि हुर्मत का कायल ना होना, दूसरा ये कि कायल होते हुए इर्तिकाब करना, तो दोनों में इस्तिहलाल के माना पाए जाते हैं। फलम्मा क़हरूना व ज़लमूना व ज़य्यक़ू अलैना, तो जब उन्होंने हम पर कहर ढाया, ज़्यादती की, हम पर जुल्म किया, वदय्यक़ू अलैना, और हम पर मशक्क़त और तंगी पैदा कर दी। क़हर यक़हरु क़हर, ज़्यादती करना। दय्यक़ तदयीक़, अरसाए हयात तंग कर देना, मशक्क़त और तंगी में मुब्तला कर देना। वहालू बैनना व बैन दीनिना, और हमारे दीन के माबैन हाइल हो गए, रुकावट और आड़ बन गए। खरजना इला बिलादिक, तो हम आपके मुल्क की तरफ निकल आए। वख्तरनाक अला मन सिवाक, और दूसरों के बिलमुकाबिल हमने आपको मुंतखब किया, आपको चुना और पसंद किया। अला मन सिवाक, सिवा इस्तिस्ना के लिए, आपको के अलावा, आपको छोड़कर दूसरे लोगों के मुकाबले में हमने आपको मुंतखब किया। वरग़िबना फ़ी जिवारिक, और हमने आपके पड़ोस में दिलचस्पी ली, आपके पड़ोस को पसंद किया। वरजौना अल्ला नुज़लम इंदक अय्युहल मलिक, और हमने ये उम्मीद की कि बादशाह आपके पास हम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। वसमिअ नजाशी कुल्ल ज़ालिक फ़ी हुदूइन व वक़ार, नजाशी ने ये सारी बातें बड़े सुकून और मतानत के साथ सुनी। हुदू बारहा गुजरा है, हदा यहदू, हदा यहदउ, हुदू अन, पुरसुकून होना, तो बड़े सुकून और वक़ार, मतानत के साथ सुनी।
सुम्मा क़ाल, फिर फरमाया, हल मअक मा जाअ बिही साहिबुकुम अनिल्लाहि मिन शै, क्या तुम्हारे साथी अल्लाह के पास से जो कुछ लाए हैं उसमें से कुछ तुम्हारे पास हैं? यानी अल्लाह ने उन पर जो कलाम नाजिल किया है, जो किताब दी है, तो उस किताब का कोई हिस्सा कुछ तुम्हारे पास है? क़ाल जाफ़र नअम, हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि हाँ। क़ाल नजाशी फ़क़रअहु अलैया, तो नजाशी ने कहा उससे मेरे सामने पढ़ो। फ़क़रअ जाफ़र सदरन मिन सूरत मरियम, तो हज़रत जाफ़र ने सूरह मरियम का इब्तिदाई हिस्सा पढ़ा। सदर की जमा सुदूर, किसी भी चीज़ के इब्तिदाई हिस्से को कहा जाता है, जैसे सदरुल किताब, किताब का आगाज़ इब्तिदाई हिस्सा, सदरुन नहार दिन का इब्तिदाई हिस्सा, और सदरम मिन शै किसी चीज़ का इब्तिदाई हिस्सा। सदरम मिन सूरत मरियम, सूरह मरियम के आगाज़ का कुछ हिस्सा पढ़ा। फ़बकन नजाशी हत्ता ख़दल्लत लिह्यतुह, तो नजाशी रो पड़े यहाँ तक कि उनकी दाढ़ी तर हो गई। इख़दल्लु इख़दिलाल, बाब इफ्तिआल से तर होना, भीग जाना। लिह्या की जमा लुहा और लिहा, दाढ़ी। वबका असाक़िफ़तुहु हत्ता अख़दलु मसाहिफ़हुम, और उसके पादरी भी रो पड़े यहाँ तक कि उन्होंने अपने मसाहिफ को, अपनी किताबों को भिगो दिया। अख़दल इख़दाल बाब इफ़आल से मुतअद्दी है, तर कर देना, भिगो देना, और इख़दल्लत इफ्तिआल में लाजिम है, भीग जाना। तो उनके पास जो किताबें थी उनको भिगो दिया, इतने रोए। कुरान करीम में भी 7वें पारे में इन्हीं लोगों का तज़किरा किया है। वइज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूल तरा अयुनहुम तफ़ीदु मिनद दम। तो ये हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु की मुअस्सिर तकरीर थी जिसने बादशाह पे बहुत ज़्यादा असर डाला, और ये मुख्तसर और जामे तकरीर जिसमें इस्लाम और जाहिलियत को बहुत बेहतरीन अंदाज में समझा दिया गया है। ज़माने जाहिलियत की मंजर कशी भी कर दी और इस्लाम का मुख्तसर मगर बहुत जामे तारुफ पेश कर दिया। खैबत वफ़द कुरैशिन, कुरैश के वफ़द का नाकाम और नामुराद होना। खाइब, खासिर और नामुराद शख्स को कहा जाता है, और बाब तफ़ईल में खैयबा, नाकाम बना देना। जैसे खैयबत आमालना, आपने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, उम्मीदों को नाकाम बना दिया। सुम्मा क़ाल नजाशी, फिर नजाशी ने फरमाया, इन हाज़ा वल्लज़ी जाअ बिही ईसा यख़रुजु मिन मिशकातिन वाहिदा, ये कलाम और वो कलाम जो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर आए हैं, ये दोनों के दोनों एक ही मिशकात से निकले हुए हैं, एक ही नूर के परतव हैं। मिशकात की जमा मशाकी, पहले भी गुजरा है, रोशनदान, दीवार के अंदर चराग के रखने की जगह। तो दोनों के दोनों एक ही नूर से निकले हैं, एक ही नूर के परतव हैं, दोनों का मस्दर और माखज़ एक ही है। सुम्मा अक़बल अला रसूलै कुरैशिन, फिर कुरैश के दोनों कासिदों की तरफ मुतवज्जे हुए। लाम पर तशदीद दुरुस्त नहीं है, तस्निया है रसूलै। फ़क़ाल इंतलिक़ा, और कहा तुम दोनों चले जाओ। फला वल्लाहि ला उस्लिमुहुम इलैकुम, कसम बखुदा मैं इन्हें तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा। तो अब ये जब नाकाम और नामुराद हुए तो आखिरी हरबा फिर इस्तेमाल किया। आइंदा कल चल के फिर बादशाह के सामने कुछ ऐसी बातें पेश की कि फिर बादशाह उनसे बदजन हो जाए, लेकिन उनकी वो साजिश भी कारगर न हुई और नाकाम व नामुराद वापस लौटना पड़ा। वगदा अम्र बिन आस अलन नजाशी मिन अलगद, आइंदा कल अम्र बिन आस नजाशी के पास गए। गदा यगदु गुदुवन, सुबह के वक्त कहीं जाना, फिर मुतलक जाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। मिन अलगद, कल चल के, आइंदा कल होकर नजाशी के पास गए। वक़ाल लहू, और कहा अय्युहल मलिक,
इन्नहुम लयक़ूलून फ़ी ईसा इब्न मरियम क़ौलन अज़ीमा, ए बादशाह, ये लोग ईसा बिन मरियम के बारे में बहुत बड़ी बात कहते हैं, बहुत बड़ा बोहतान बांधते हैं। क़ौलन अज़ीमा, बड़ी बात, बड़ा बोहतान। फ़अक़बल अल मलिक अलल मुस्लिमीन फ़क़ाल, बादशाह मुसलमानों की तरफ मुतवज्जे हुआ और कहा, मादा तक़ूलून फ़ी ईसा इब्न मरियम, तुम ईसा बिन मरियम के बारे में क्या कहते हो? क़ाल जाफ़र इब्न अबी तालिब, तो हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, नक़ूलु फ़ीही मा जाअ बिही नबियुना, हम वही कहते हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, जो हमारे नबी ने हमारे सामने पेश किया। क्या? हुआ अब्दुल्लाहि व रसूलुहु व रूहुहु व कलिमतुहु अलक़ाहा इला मरियम अल-अज़राइल बतूली, कि ईसा अल्लाह के बंदे, उसके रसूल, उसकी रूह और उसका वो कलिमा है जो अल्लाह ने कवारी पाकबाज मरियम की तरफ डाला। रूह की जमा अरवाह, रूह को कहा जाता है। तो अल्लाह की जानिब से कलिमा कुन और रूह से वो पैदा हुए, इसलिए उनको रूहुल्लाह कहा जाता है। कलिमा तुन अलक़ाहा, कलिमतुल्लाह भी उनको कहा जाता है कि वो अल्लाह के एक बोल की बिना पर बगैर बाप के पैदा हुए हैं। उस कलिमे को उन्होंने कहाँ डाला? अलक़ाहा इला मरियम, मरियम की तरफ। अज़रा की जमा अज़ारा, कंवारी औरत को कहा जाता है, गैर शादीशुदा, जिसने शादी न की हो, कंवारी औरत। दुर्रतुन अज़रा, ऐसा मोती जिसमें सुराख न किया गया हो, दुर्राए नासिफा। और बतूल ऐसी औरत को कहा जाता है जो मर्दों से मुनक़ते हो, जाहिदा, दोशीज़ा। तो बतूल के दो माना होते हैं, एक वो औरत जिसने शादी न की हो, मर्दों से दूर हो, और दूसरी वो जो अपनी शराफत, अपने मकाम व मर्तबे और फजल के एतबार से सारी औरतों पर फौकियत रखती हो। तो सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा की शादी नहीं हुई, वो मर्दों से दूर थी। इसी तरह वो अपने फजल व कमाल में भी सब पर फाइक थी। और यही लक़ब सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को भी दिया गया है। हज़रत फ़ातिमा को भी बतूल कहा जाता है। तो बतूल जो मर्दों से अलग थलग हो, सबसे मुनक़ते हो। इसी से कुरान में वतबत्तल इलैहि तब्दीला, तबतीला, सबसे क़त्अ ताल्लुक़ करके अल्लाह की इबादत करो। तो ये दोनों पाकबाज औरतें अल्लाह की इबादत करने वाली और मर्दों से मुनक़ते और अपने ज़माने की सारी औरतों से मकाम व मर्तबे फ़जीलत में बढ़कर हैं, इसलिए इनको बतूल से ताबीर किया जाता है। तो हज़रत जाफ़र ने फरमाया कि वो अल्लाह के बंदे हैं, उसके रसूल हैं, उसकी रूह हैं और उसका कलिमा, कलिमा कुन, जो मरियम जो कंवारी और पाकबाज हैं, जाहिद हैं, उनकी तरफ डाला। फ़ज़रब नजाशी बियदिही इलल अर्दी फ़अख़ज़ मिन्हा ऊदन, तो नजाशी ने ज़मीन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और उससे एक तिनका उठाया, एक लकड़ी उठाई। ज़रबा बिशई, इशारा करने के माना में भी आता है, और किसी चीज़ की तरफ झुकना। तो हाथ ज़मीन की तरफ झुकाया, ज़मीन की तरफ इशारा किया। अख़ज़ मिन्हा ऊद, ऊद की जमा ईदान और आयाद, हर किस्म की छोटी बड़ी खुश्क तर लकड़ी और तिनके वगैरह को कहा जाता है। जाअ बिऊदिन व जाअ बिऊद, कुछ तिनके ये लाया, कुछ तिनके वो लाया। तो अख़ज़ मिन्हा ऊदन, एक तिनका उठाया, लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा उठाया। सुम्मा क़ाल, फिर फरमाया, वल्लाहि मा ज़ादा ईसा इब्न मरियम अला मा क़ुल्त मिक़दार हाज़ल ऊदी, कसम बखुदा जो कुछ आपने कहा है ईसा इब्न मरियम, उससे इस लकड़ी की मिक़दार भी ज़्यादा नहीं है। यानी हू बहू यही है ईसा इब्न मरियम,
اس لکڑی کی مقدار بھی اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ تو گویا کہ نجاشی جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی باتوں کے بالکل موافق ہوا، ہم آہنگ ہوا، تو کفار قریش کا یہ حربہ بھی ناکام ہوا۔ ما زیادہ بڑے ہوئے نہیں ہیں، علی ما قلتا جو کچھ آپ نے کہا اس پر، مقدار هذا العود اس لکڑی کی مقدار، اس تنکے کی مقدار بڑے ہوئے نہیں ہیں۔ ورد المسلمین ردا کریما، نجاشی نے مسلمانوں کو بہت عزت کے ساتھ لوٹا دیا، یعنی اپنی جگہوں پر جہاں پر وہ مقیم تھے، ٹھہرے ہوئے تھے، وہیں پر لوٹا دیا، ان کو واپس کر دیا۔ وَأَمَّنَهُمْ، اور ان کو امان دی، ان کو پناہ دی۔ امن تأمین، پناہ دینا، آج کل اسی سے تأمین استعمال ہوتا ہے انشورنس کے لیے، تأمین الحیات لائف انشورنس، اور تأمین البضائع گولڈ وغیرہ انشورنس جو گاڑیوں کا یا دوسری چیزوں کا ہوتا ہے۔ وَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ مَقْبُوحِينَ، اور وہ دونوں نجاشی کے پاس سے بدحال اور نامراد نکل گئے۔ قبح یقبح قبحا وقبوحا، خیر سے دور کرنا، ناکام اور نامراد کرنا۔ یوم القیامت ہم من المقبوحین، تو نامراد اور بدحال لوگ جن کو خیر سے دور کر دیا گیا ہو۔ تو خرج من عنده مقبوحین، وہ دونوں نجاشی کے پاس سے نامراد نکلے، بدحال واپس ہوئے۔ تو یہ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی تقریر اور اس کے نتیجے میں ہونے والا جو اثر تھا وہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو سیرت طیبہ کا یہ بھی ایک بہت اہم ٹکڑا ہے، اس سے بھی ہمیں بہت کچھ سبق ملتا ہے۔ آخر میں آپ کے سامنے شاہنامہ اسلام سے حافظ جلندری رحمہ اللہ کا ایک کتاب پیش کرتا ہوں جو انہوں نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی اس تقریر کے بارے میں اپنے مخصوص پرکشش اور دلچسپ انداز میں پیش کیا ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔